CorelDRAW Essentials Workspace Tools. Application commands are accessible through the menu bar, toolbar, toolbox, property bar and docker window. ये जो हमारा CorelDRAW है, which is accessible through a menu bar, toolbar, toolbox, property bar and docker window. The property bar and docker window provides access to commands that relate to the active tool or current task. Property bar and docker window हमारा क्या प्रोवाइड करते हैं? To access the command which is related to our current task. The property bar, docker window, toolbar and toolbox can be opened, closed and moved around your screen at any time. जो हमारा property bar है, docker window है, toolbar है and toolbox इसे हम मूव भी करा सकते हैं स्क्रीन पर अपनी ऊपर नीचे थोड़ा सा, एंड it is also closable या detachable. If you don't want to see on the screen, you can detach it anytime and add anytime. Next, standard toolbar. We have a standard toolbar in our CorelDRAW that is helpful to create and modify our work. The standard toolbar contains buttons that are shortcuts to many of the menu commands. Standard toolbar जो हमारा होता है इसमें हमारे टूल से रिलेटेड काफ़ी से शॉर्टकट्स लाइक मेन्यू कमांड एक मेन्यू के तरीके होता है. द स्टैंडर्ड टूल बार डिस्प्लेज बाय डिफ़ॉल्ट. हमारा जो स्टैंडर्ड टूल बार है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ शॉर्टकट्स हमारे ऑलरेडी ऐड होते हैं विच इज़ हेल्पफुल टू एनी टाइम फॉर डूइंग सम सिंपल टास्क. फर्स्ट, स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग. कोई भी हम न्यू ड्राइंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट दिया होता है सबसे पहले. नेक्स्ट, ओपन अ ड्राइंग. कोई भी हम ड्राइंग ओपन करना चाहते हैं उसका शॉर्टकट दिया जाता है. नेक्स्ट, सेव अ ड्राइंग. कोई भी ड्राइंग जो हमने बनाई है, वर्क है हमारा करेंटली, उसे हम अगर सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए डायरेक्टली शॉर्टकट है. नेक्स्ट, प्रिंट के लिए कट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट टू द क्लिपबोर्ड. कोई भी ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली कट करना चाहते हैं उसके लिए शॉर्टकट है. नेक्स्ट, कॉपी पेस्ट अनडू रिस्टोर एन एक्शन दैट वाज अनडन. कोई भी हम एक्शन जिसे रिस्टोर करना चाहते हैं फिर से, वो भी. नेक्स्ट, इंपोर्ट अ ड्राइंग और एक्सपोर्ट अ ड्राइंग एंड सेट अ जूम लेवल. हम पिक्चर की जो विंडो पेज है उसमें भी जूम कर सकते हैं विच इज़ ऑल्सो अ शॉर्टकट एयर इन आवर स्टैंडर्ड टूल बार. You can import and export any images from your computer's other drive and put on drawing page from this shortcut menu. Next is our main toolbox. We have to explore the toolbox fully.
Now, exploring the toolbox. Flyouts are open to display a set of related CorelDRAW Essentials tool. A small arrow in the bottom right corner of the toolbox button indicates a flyout. For example, the shape flyout is clicking a flyout arrow opens a set of related tools. Clicking and dragging the grab handles at the end of the flyout sets the flyout is its expanded form. Flyouts क्या हमारे होते हैं? जो हमारा टूल बॉक्स होता है उसमें कोई भी जो इमेजेस दी गई होती हैं उसमें एक स्मॉल एरो इन द बॉटम राइट कॉर्नर, हमारे जो राइट कॉर्नर पे एक छोटा सा ट्रायंगल टाइप का शेप का बटन होता है. इफ़ यू क्लिक ऑन इट you have some other part of the related tool. When you click on it, this arrow, you have a set of related tool. उस tool से related हमारे जो पार्ट्स होंगे वो ओपन होते हैं. इट मीन्स फ्लाई आउट्स क्या करता है? इट डिस्प्लेज आ रिलेटेड एसेंशियल्स टूल ऑफ कोरल ड्रॉ. You can use the tools in the toolbox to create, fill and modify the object in your drawing. अपनी फाइल या ड्राइंग में आप जो भी मॉडिफाई या फिल कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, it is helpful to use this toolbox to create and modify your object. The following table provide description of the flyouts and tools in the CorelDRAW Essential Toolbox. Here is some description about your flyouts. फर्स्ट हमारा क्या है? लाइक अ एरो which is a pick tool. नेक्स्ट एरो दिया है, उसके ऊपर एक लाइन दी है, वो हमारा क्या है? एक शेप एडिटिंग टूल. इफ यू क्लिक ऑन द ट्राइंगल ऑन द विच इज राइट कॉर्नर, छोटा सा एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस पर हम अगर क्लिक करते हैं, हर शेप के नीचे एक छोटा सा ट्रायंगल दिया हुआ है. जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा इससे रिलेटेड टूल्स ओपन होते हैं. फर्स्ट हमारा शेप एडिट लेट्स यू एक्सेस द शेप, नाइफ एंड इरेजर टूल. इसमें हमारे 3 टूल ओपन होते हैं. फर्स्ट है शेप, सेकेंड नाइफ एंड थर्ड इरेजर. नेक्स्ट कर्व lets you access the freehand bezier and artistic media tool. इसमें हमारे 3 टूल ओपन होते हैं, फ्री हैंड, बेजर, आर्टिस्टिक मीडिया. नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट लेट्स यू एक्सेस द ग्राफ पेपर, पॉलीगॉन एंड स्पाइरल टूल. इसमें भी 3 हमारे टूल्स ओपन होते हैं विच इज़ अ ग्राफ पेपर, पॉलीगॉन
and spiral tool. Next, perfect shapes. Let us you access the basic shapes: arrow shapes, flowchart shapes, star shape and call out shapes tool. Interactive tool. Next, let you access the interactive blend, interactive contour, interactive distortion, interactive drop shadow, interactive envelope, interactive extruder and interactive transparency tools. Next, outline lets you access the outline pen and outline color. Outline lets you access the outline pen and outline color. Dialog box and selection of outlines of various width. हमारी इसमें क्या होती है, वेरियस विड्स की ऑप्शंस होते हैं इसमें कलर एंड टेक्स्ट से रिलेटेड. नेक्स्ट, फिल लेट्स यू एक्सेस द फिल कलर, फाउंटेन फिल, पैटर्न फिल एंड टेक्सचर फिल. जिस तरीके से हम फिल करना चाहते हैं अपनी इमेज को, उसके लिए ऑप्शंस होते हैं. Next, here is a some description about our toolbox. First हमारा क्या है, pick tool. The pick tool lets you select and size, skew and rotate object. हम अपने ऑब्जेक्ट का साइज skew and rotation से related work, you can do it with this pick tool. आपको अपनी इमेज कहीं पे मूव करानी है या उसके साइज से रिलेटेड कुछ इमेजेस में करना है, छोटा बड़ा करना है, तो आप सबसे पहले पिक टूल का सेलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट, द शेप टूल लेट्स यू एडिट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. शेप टूल क्या करता है, हमें हेल्प करता है ऑब्जेक्ट का शेप चूज करने में. The knife tool lets you cut through objects. Next, the eraser tool lets you remove areas of your drawing. Next, text tool. Lets you type words directly on the screen as artistic or paragraph text. Text tool help you to directly type on the screen which type of you want in artistic or simple form or paragraph text also. Next, basic shapes. कुछ हमारे बेसिक शेप्स होते हैं, उसके लिए होता है ये वाला टूल. लेट्स यू चूज फ्रॉम अ फुल सेट ऑफ शेप्स इंक्लूडिंग अ हेक्साग्राम, अ स्माइली फेस एंड राइट एंगल ट्रायंगल. नेक्स्ट, द एरो शेप. एरो शेप टूल लेट्स यू ड्रॉ एरोज ऑफ वेरियस शेप, डायरेक्शन एंड नंबर ऑफ हेड्स. Next, the flowchart shape tool lets you draw flowchart symbol. flowchart shape जो टूल होता है वो हमारा flowchart के symbols draw करने के लिए यूज़ किया जाता है. Next है star shape tool lets you draw ribbon, objects and explosion shapes.
Next, call out shapes tool lets you draw call out and labels. Next, the freehand tool lets you draw single line segments and curves. freehand tool हमारा किस लिए होता है? कोई भी सिंगल लाइन ड्रॉ करने के लिए या कर्व्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है. द बेजियर टूल lets you draw curves one segment at a time. Next, the artistic media tool provides access to the brush, sprayer and calligraphic tool. artistic media tool हमारा it provides us brush, sprayer and calligraphic tool. कैलीग्राफी से रिलेटेड वर्क भी कर सकते हैं इसके द्वारा. एक आर्टिस्टिक मीडिया टूल है. यू कैन राइट कैलीग्राफिक टेक्स्ट ऑल्सो with this tool. Next, the graph paper tool lets you draw a grid of lines similar to that on graph paper. You can draw a grid lines with this tool like a graph paper. Next, polygon tool lets you draw symmetrical polygon and star. With this, you can draw a polygon and a star. Next, a spiral tool lets you draw symmetrical and logarithmic spirals. Next, the rectangle tool lets you draw rectangles and squares. Next, ellipse tool lets you draw ellipse and circles. With this tool, you can draw ellipse or circles. The interactive fill tool lets you apply various fills. Next, interactive blend tool lets you blend two objects. कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड करने के लिए ये टूल हमारा यूज़ होता है. नेक्स्ट, इंटरेक्टिव कॉन्टोर टूल लेट्स यू अप्लाई कॉन्टोर टू एन ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हमारा उस पर कॉन्टोर करने के लिए यूज़ होता है. द इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल लेट्स यू अप्लाई अ पुश और पुल डिस्टॉर्शन एंड अ जिपर डिस्टॉर्शन और अ ट्विस्टर डिस्टॉर्शन टू एन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो टूल लेट्स यू अप्लाई अ ड्रॉप शेडो टू एन ऑब्जेक्ट. कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर उसमें ड्रॉप शेडो हम ऑब्जेक्ट किसी में अप्लाई करना चाहते हैं, यू कैन डू इट विद दिस टूल. नेक्स्ट, इंटरेक्टिव एनवलप टूल लेट्स यू डिस्टॉर्ट एन ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग द नोड्स ऑफ द एनवलप. नेक्स्ट, इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल लेट्स यू अप्लाई द इल्यूजन ऑफ डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट. इसमें हम ऑब्जेक्ट की इल्यूजन सा क्रिएट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड. द नेक्स्ट, द इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल लेट्स यू अप्लाई ट्रांसपेरेंसी टू ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, द zoom tool lets you change the magnification level in the drawing window. Next, the hand tool lets you control which part of the drawing is visible in the drawing window. जो भी पार्ट हम ड्राइंग में अपनी विजिबल करना चाहते हैं, यू कैन डू इट विद दिस हैंड टूल. नेक्स्ट, अवर हेडिंग इज प्रॉपर्टी बार.
The property bar displays the most commonly used function that are relevant to the active tool or the task you are performing. Property bar में commonly हमारा वो function हमारा show होता है जो हमारा active होता है, जिस which tool is active, which tool is selected, उसकी रिलेटेड फंक्शंस और वर्किंग हमारी उस समय पर प्रॉपर्टी बार पे शो होती है. ऑल्दो इट लुक्स लाइक अ टूल बार, ये हमारा एक टूल बार की तरीके ही दिखता है. द प्रॉपर्टी बार कंटेन चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द टूल और टास्क. जो भी हम टूल अपना सेलेक्ट करते हैं या टास्क चेंज करते हैं तो हमारा उससे रिलेटेड हमारा ये जो प्रॉपर्टी बार है उसमें चेंजमेंट आता रहता है. जिस टूल को हमने सेलेक्ट किया होगा उससे रिलेटेड हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हमारी उस प्रॉपर्टी बार पे शो होंगी. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू क्लिक द टेक्स्ट टूल इन द टूल बॉक्स द प्रॉपर्टी बार डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट रिलेटेड कमांड. अगर हमने उस समय पे प्रेजेंट टाइम पे टूल बॉक्स को या टेक्स्ट टूल को हमने क्लिक या सेलेक्ट कर रखा है तो हमारी सिर्फ जो प्रॉपर्टी होंगी उस समय वो टेक्स्ट से रिलेटेड शो होंगी. टेक्स्ट रिलेटेड कमांड्स ओनली शो ऑन द प्रॉपर्टी बार at that time. After when you change the tool it also change. In the example below the property bar displays text formatting, alignment and editing tools. Here is the example where you can see that there is some example of text formatting, alignment and editing tools. Our next heading is Docker window. Docker window displays the same type of control as a dialog box. Docker window एक like a dialog box है. हमारी same properties हमारी इसमें शो होती such as a command button, option and list boxes. It's also like a command button. It shows a list. Unlike most dialog box, you can keep Docker window open while working on a document. ये हमारा जो Docker window होती है जब हम वर्क कर रहे होते हैं तब भी ये ओपन रहता है. Unlike other dialog box, वो हमारे जब वर्किंग कर रहे होते हैं वो हमारे उस समय ओपन परमानेंटली नहीं रहते हैं. So you can readily access the commands to experiment with different effects. Docker window can be either docked or floating. अगर आप चाहते हैं floating इसे करते रहना तो आप इसे ऑन रख सकते हैं. Otherwise you can remove it. Docker window attaches itself to the edge of the application window. हमारी एप्लीकेशन विंडो के एजेस पे ये अटैच्ड होती है. अनडॉकिंग ऑफ डकर विंडो डिटैचेस इट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्क स्पेस. यू कैन डिटैच इज ऑल्सो एवरी टाइम एनी टाइम सो इट कैन बी ईजली मूव्ड अराउंड. इट इज़ ऑल्सो मूवेबल. यू कैन मूव ऑन द स्क्रीन वेयर यू वॉन्ट टू पुट इट. यू कैन ऑल्सो कोलैप्स Docker window to save screen space. An example is the object properties Docker window. When this Docker window is open, you can click an object in the drawing window and view formatting, dimensions and other properties of the object. हम Docker window में जो भी हम प्रेजेंट टाइम पे वर्क कर रहे हैं तो कोई भी टास्क हमारा होता है उसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं इस पे. और क्या करते हैं हम उसमें अपने ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डायमेंशंस वगैरह चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट
heading is status bar. The status bar displays information about selected objects such as color, fill type and outlines, cursor position and relevant command. status bar पे हमारी colors से related type and outlining और कर्सर की पोजीशन होती है और अदर relevant commands which shows on our status bar. Like you can see that width, height, center यानी कि पोजीशन हमारी शो करता है स्टेटस बार में. शेप, next heading is setting up the page. By default CorelDRAW X2 has A4 as its page size. by default हमारा क्या हुआ था, A4 size select होता है, but you can change it to the other preset page size. जो भी आप size change करना चाहते हैं you can also change it anytime. Our next heading is save the file. To save a new drawing, जो भी हमने नई फाइल ड्रॉ की है यानी कि क्रिएट की है उसे हम कैसे सेव कर सकते हैं अपने कोरल ड्रॉ में. क्लिक ऑन फाइल देन सेव और सेव एज. सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे. देन यू हैव अ ड्रॉप डाउन मेन्यू यू कैन वेयर यू कैन सी दैट टू ऑप्शंस, सेव और सेव एज. यू कैन चूज एनी वन. Next step is choose a drive and folder where you want to save your drawing. जो भी फोल्डर आप चूज करना चाहते हैं you can choose a drive or folder where you want to save your file. Next step is type a name in the file name box. Our next step is आप फाइल नेम बॉक्स में अपनी जो फाइल बनाई है उसका नेम सेव कर सकते हैं. देन क्लिक ऑन सेव बटन. आफ्टर दिस यू हैव अ सेव बटन ऑप्शन, यू कैन क्लिक ऑन दिस. आपकी फाइल सेव हो जाती है. और इफ़ यू वांट टू सेव एज ऑप्शन चूज, यू कैन चूज योर फाइल एज other name if you want to save it in other position. You can save it which name you choose. You can change the name by which you want. You can save this file as well as in your computer with other name or in other folders. हमारा कुछ शॉर्टकट्स हम भी यूज़ कर सकते हैं to save your file. Control S. If you want to use shortcut keys, you can Control S and name file name and save button click. Next, create a new file. आप कोई न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए क्या करेंगे, क्लिक ऑन फाइल देन न्यू ऑप्शन. न्यू ऑप्शन के बाद हमारे कुछ ब्लैंक पेजेस या ब्लैंक विंडो पेज ओपन करने के लिए होता है, वो भी कर सकते हैं. और हमारी कुछ इसमें टेम्पलेट्स भी सेव रहती हैं, यू कैन चूज़ इट ऑल्सो. कोई भी फाइल न्यू फाइल ओपन करने के लिए हम कंट्रोल एंड शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं. और यू कैन क्लिक ऑन स्टैंडर्ड टूल वेयर यू हैव ऑल्सो अ न्यू बटन ऑप्शन. To create a new drawing, select a desired layout A4
विच इज़ A4 डिफ़ॉल्टेड हमारा A4 सेव होता है. बट इफ़ यू वांट टू सेव और चेंज हाइट विड्थ और of the page you want to use it, you can change it also. Select the desired measurement unit and color mode. जो भी आप कलर मोड चाहते हैं वो भी हम जब न्यू ऑप्शन ओपन करते हैं, फाइल के बाद न्यू क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस आते हैं जिसमें हम अपने पेज का साइज़, कलर वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ ऑल्सो सम टेम्पलेट्स. With the help of given templates, you can create any images or task. Then click on OK button. Next, open a file. To open a drawing, do the following. कोई भी स्टेप फॉलो कर सकते हैं which you want to use. First you can click on file, then you have a drop down menu where you can choose open function. Otherwise you can open button use on the standard toolbar. You have also open button on your standard toolbar. Otherwise you can press Ctrl plus O, which is also a shortcut key to open any file. Next, the open drawing dialog box appear. हमारा इसके बाद क्या होता है, ओपन करने के लिए डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है. चूज़ द ड्राइव फोल्डर वेयर द फाइल इज़ स्टोर्ड. जो भी हम फाइल चूज़ करना चाहते हैं, सबसे पहले हम उस ड्राइव और फोल्डर्स में जाएंगे. विच फाइल यू वांट टू चूज़. फर्स्टली यू वांट टू क्लिक ऑन द ड्राइव और फोल्डर, देन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फाइल. जो भी आप फाइल ओपन करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे. देन क्लिक ऑन ओपन बटन. इसके बाद ओपन बटन पर आप क्लिक करेंगे. देयर हियर इज़ अ अदर प्रोसीजर ऑल्सो टू ओपन अ रिसेंटली ओपन ड्राइंग. जो भी हमारी रिसेंट ड्राइंग होती है उसे ओपन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्टली हम क्लिक कर सकते हैं. फर्स्ट क्लिक करेंगे फाइल, देन यू हैव अ लिस्ट ऑफ द लास्ट 4 ओपन फाइल्स appears on the bottom of the menu. जब फाइल पे क्लिक करते हैं तो लास्ट 4 फाइल हमारी जो ओपन की गई होती हैं वो हमारी सामने अपीयर होती हैं. देन क्लिक ऑन द फाइल यू वांट टू ओपन. जो भी फाइल आप अपनी ओपन करना चाहते हैं वो आप ओपन कर सकते हैं. Here is also some important points. CorelDRAW is a vector graphic editor developed and marketed by Corel Corporation. CorelDRAW हमारा क्या है, वेक्टर ग्राफिक एडिटर सॉफ्टवेयर है विच इज़ ऑल्सो डेवलप्ड और मार्केटेड बाय कोरल कॉर्पोरेशन. कोरल कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप्ड और मार्केटिंग की गई है इसकी. देयर आर 2 टाइप्स और इमेजेस, वेक्टर इमेज और बिटमैप इमेज. कलर पैलेट इज डकेबल बार दैट कंटेन्स कलर स्विचेस. A window containing available commands and setting relevant to specific tool or task is a Docker window. The property bar displays the most commonly used functions that are relevant to the active tool. Property bars क्या डिस्प्ले करता है, which is also display a most commonly used function which is a your एक्टिव टूल. जो भी आपने एक्टिव टूल ओपन किया हुआ है उससे रिलेटेड कमांड्स हमारे प्रॉपर्टी बार पे शो होते हैं. डकर विंडो कैन बी आइदर डॉक्ड और फ्लोटिंग. आप जो भी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं डकर विंडो को फ्लोट यानी फ्लोटिंग करते हुए देखना चाहते हैं, फ्लोटिंग चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अदरवाइज डक्ड यू कैन डिटैच इट ऑल्सो. द इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल lets you apply the illusion of depth to objects. इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल हमारा क्या होता है, कोई भी इल्यूजन दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर योर ऑब्जेक्ट. थैंक यू.